हाँ दी। दी आपका जैसे रजिस्टर किया ना पहले। मेरा रजिस्ट्रेशन मेरा हो गया, अब मेरा सेकंड वैक्सीन भी हो गया, राइट। ये देख गूगल पे में जाके कोविड Good evening, everyone. Am I audible, students? Yeah. Okay. First of all, sorry for the inconvenience today in the evening. Like at 3:30, I told you that I am going to take your lecture, but because of some problem, means I was tired a lot, and it will not be possible to take the lecture at that time. So, like now, our 6 to 7 sessions are pending here. So I will be taking at this time. So I think so it will be better. And those who are not able to watch the live class, then they can watch the recording. And after that, if they have any doubt, then they can personally message me or they can post in the group so we can have a healthy discussion on that. Okay. So let us begin with our lecture here. So now बहुत छोटे sessions है, but I'll try to cover all the sessions. Okay. And the fundamental analysis, that is the extra thing for you all, and that we are going to cover soon. Okay, so let us start with our lecture day 30. That is the 5-step analysis. So it shows the financial position of the company alone. So this 5-step analysis, if you are doing, I'm going to share the two types of analysis I'm going to share here. That is, one is the 5-step analysis and the other one is the fundamental analysis, in which we are going to see the ratios. Okay, here also you are going to watch some ratios, and on the basis of that you can take out the ratios. And अभी के टाइम पे रेशियोज आपको आएगा तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा है बट आपको पता होना चाहिए कौन से रेशियोज से क्या होता है. यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑन स्क्रीनर, टिकर टेप, ये सारी वेबसाइट्स पे से nsc.in, ये सब वेबसाइट से आपको
Yeah, sorry, I just got the call here. Okay, so this 5-step analysis is very much important here, very much important if you want to like know about the company's fundamentals. So very much important, students. You can see the screen here. Okay, so that is the growth, profitability, financial health, management, and red flags. So let us discuss one by one here. That is growth हमने already पहले previous lecture में discuss कर लिया है. What is growth? Now profitability. What is profitability? So companies are the same as mutual fund invest in the companies that generate the higher returns. So you know very well that mutual funds कौन manage करता है? Portfolio managers जो होते हैं वो manage करते हैं mutual funds. And apart from that, what they do is like उन लोग सबका पैसा collect करके एक साथ वो लोग क्या करते हैं? What they do? They put the money into the companies which are giving the higher returns. So higher the profit return, the more attractive the businesses. So आप देख सकते हो कि कुछ म्यूचुअल फंड है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? वी पुट इन दैट म्यूचुअल फंड. या माइक म्यूट है सर? नहीं, माइक ऑन है ना अभी? हाँ. So this is the way the profitability is been measured. Now here profitability checklist, how you can find out that the company is making the profit. तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है या नहीं है? ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी मींस कम इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा कमाना. दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, प्रॉफिट से अलग होता है प्रॉफिटेबिलिटी. ठीक है, सो देयर आर फाइव ratios that we have to see here. That is the net profit margin, free cash flow, a return on assets, a return on equity, and return on capital employed. So these are the ratios which we have to see, which we have to check that on the basis of this ratio we can measure the profitability. हम लोग profitability को measure कर सकते हैं students. ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला net profit margin. Just a minute, let me take the notes here. Okay. Okay. So net profit margin. What is net profit margin? Net profit margin simple language में बोलेंगे तो कितना कंपनी net profit कमाती है. तो net profit upon total sales into 100 is a formula. So here you will get 15%. It should be more than 15%. Net profit margin कितना होना चाहिए? कंपनी एटलीस्ट 15% से ऊपर कमानी चाहिए. Please note down the points. Please note down the points if you are watching the video or else if you are watching the live. Please note down this, that a company's ideal net profit or a standard net profit should be more than 15%. So for each rupees 100 of sales, the company earns rupees 15 in the net profit. Net profit कितना होना चाहिए? 15 रुपए. अगर आप 100 रुपए का माल बेच रहे हो तो कम से कम 15 रुपए तो कमाना चाहिए, या उससे ज्यादा रहेगा तो it's a good thing. It's a good sign of the company that you should invest in that company. Okay, clear with this? Very interesting part is started, students. Please attend it properly. आप ध्यान दो. ठीक है, कुछ डाउट रहेगा तो पूछो मुझे. Yes, please reply, students. I need your reply today. We can have an interactive session, students. Okay, that's great. That's great. Higher net margin indicates that a company runs efficiently to make profits. So company बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत फायदा कमा रही है, so बहुत ही efficient way में business चल रहा है. Coming to the second part is the free cash flow. Now free cash flow is simply we can say cash flow from operations minus capital expenditure. So जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा फ्री कैश फ्लो. ठीक है, सो जैसे कि हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो कितना है. तो फ्री कैश फ्लो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100. तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो कितना होना चाहिए? इट शुड बी मोर देन, आइडियली इट शुड बी मोर देन 5%. कितना होना चाहिए? 5%. इट मींस सिंपल लैंग्वेज में that out of rupees 100 sales the company is making rupees 5 as free cash. मतलब रोकड़ा कितना मिल रहा है उनको? 100 रुपए का माल बेचने के बाद उनको रोकड़ा कितना मिल रहा है? 5 रुपया उनको रोकड़े में काम हो रहा है. बाकी का अगर समझो 15% नेट प्रॉफिट है तो 10% जो है, 10 रुपए जो है वो क्या होगा? क्रेडिट में, मतलब धीरे धीरे पैसा मिलेगा. तो जितना कैश वाला बिजनेस रहेगा स्टूडेंट्स,
उतना ज्यादा बेनिफिट होता है, उतना ज्यादा हम लोग कंपनी पे रिलाय कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि माल बेचा, तुरंत ही पैसा मिल गया, तो वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अगर यहाँ पे कैसा होता है कि लाइक क्रेडिट पे बिजनेस चलने वाला है तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्रेडिट पे बिजनेस चलता है तो क्या हो जाता है नॉर्मली, क्रेडिट क्या है, क्रेडिट का पैसा डूब भी सकता है। करेक्ट और नॉट? इट कैन, कंपनी क्या कर सकती है, दूसरे जो बिजनेसेस है वो क्या कर सकते हैं, कंपनी का पैसा डुबा भी सकते हैं ज्यादा क्रेडिट लेके, और बाद में क्रेडिट का पैसा नहीं देके बैड डेट्स क्रिएट करके। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर। ठीक है, क्लियर विद दिस पार्ट स्टूडेंट्स? हाँ, एक और चीज स्टूडेंट्स याद रखना है इसमें, दैट इज ये फ्री कैश फ्लो है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनी। सो ये सेक्टर वाइज डिफरेंशिएट करता है। तो आप यहाँ पे आज आपके लिए एक काम रहेगा होमवर्क में, दैट व्हाट इज द what should be the ideal free cash flow for pharma companies, then what should be the ideal cash flow for chemical sector, what should be the ideal free cash flow for we can say as real estate sector, what should be the ideal cash flow for we can say as FMCG sector. So ऐसे what should be the ideal cash flow, free cash flow for banking sector. तो ऐसे सेक्टर वाइज इट डिपेंड्स। मैं जनरल वे में आपको बोल रहा हूँ कि इट शुड बी मोर देन 5%, कम से कम 5% के ऊपर तो फ्री कैश फ्लो होना ही चाहिए। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर विद द कैश फ्लो? ओके, coming to the next ratio, that is return on assets. Okay, now return on assets क्या होता है स्टूडेंट्स? So return on assets मतलब आपने जितना assets आपके पास बिजनेस में है उसमें से आप कितना पैसा कमा रहे हो, that is your return on assets. तो अब return on assets हम लोग यहाँ पे ROA समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये जब फंडामेंटल एनालिसिस करते हो स्टूडेंट्स, तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको सबसे सिंपल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Yes students, am I audible students? Yeah, so रिटर्न ऑन असेट्स जितने भी मैंने अभी तक आपको बताया है फंडामेंटल एनालिसिस, जैसे कि नेट प्रॉफिट मार्जिन और फ्री कैश फ्लो बताया मैंने स्टूडेंट्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर कि नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड फ्री कैश फ्लो ये आपको पिछले 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल का यहाँ पे डेटा देखना है। आप यहाँ पे ऐसा नहीं करोगे कि लाइक पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट 25% था तो अब ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। नो, कंपनीज नेट प्रॉफिट फ्लक्चुएट ईयरली, कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयरली फ्लक्चुएट होता है। तो आप उसका 5 साल का डेटा देखोगे कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो सपोज कंपनी ने 2012 में उन्होंने कमाया 10%, 2013 में 12%, 2015 में 15%, 2017 में उन्होंने 17% कमाया, 2020 में 20% कमाया। सो इन सच कंपनी यू शुड इन्वेस्ट। व्हाई? बिकॉज दैट कंपनीज नेट प्रॉफिट इज ग्रोइंग ग्रेजुअली। ट्राई टू अंडरस्टैंड। So that's why you should check the data of at least 5 years. At least 5 years का जो भी ratios हम मैं सिखा रहा हूँ आपको, आप 5 साल का डेटा देखोगे। Okay. And one more rule, I'm taking your fundamental analysis. Try to understand this. Do not rely on only one fundamental analysis. Do not rely on only one ratio. जैसे कि आपने बोल दिया
कि जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कांचन बोलती है सर नेट प्रॉफिट सर 25% सर, पिछले 5 साल से सर वो लोग कमा रहे ग्रेजुअली 25% नेट प्रॉफिट है सर, बहुत अच्छा है, कंपनी परफॉर्म कर रही है, मैं सर 5 लाख का शेयर डाल रही हूँ। नो, आई विल स्ट्रेट अवे से नो टू दिस आंसर। सर अभी तो आपने बोला कि 25% अच्छा, स्लोली ग्रेजुअली कर रही है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, स्लोली ग्रेजुअली उनका नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो सर ऐसी कंपनी में क्यों नहीं इन्वेस्ट करना है? सिर्फ नेट प्रॉफिट नहीं देखना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट के साथ साथ आपको बाकी के रेशियोज भी देखने हैं। अगर आपने 10 रेशियो 12 रेशियो देखे, उसमें से आपको 8 या 9 रेशियोज में पॉजिटिविटी दिख रही है, देन ओनली यू आर गोइंग टू पुट योर मनी। और वो भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद रहे हो, तो अगर आपको 10,000 का शेयर खरीदना है तो आप सिर्फ 5,000 रुपए डालोगे, फिर बाद में अगर वो और नीचे आता है तो और 5,000, बाय एट द डिप, बाय एट द डिप मतलब नीचे आएगा उसके बाद आप 5,000 रुपए और डालोगे, या ऊपर गया तो थोड़ा और 2,000 डाल दो, चलेगा, कोई नहीं, एवरेज कर लो उसको, ठीक है। डू नॉट पुट योर एंटायर मनी इन वन डे, दैट्स द रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। क्लियर विद दिस, क्लियर विद दिस पार्ट हियर, ठीक है? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? kindly reply. I need your reply. You can ask your questions if you have any questions related to fundamental analysis. तो do not, मेरा क्या बोल रूल है, कोई भी एक फंडामेंटल एनालिसिस पे, कोई भी एक रेशियो पे आपको रिलाय नहीं करना है स्टूडेंट्स, ओके? यस, दैट्स ग्रेट। ओके, आई एम गेटिंग द रिप्लाई, या seems that you are you are finding the interest in this. Okay, so return on asset, it measures the profitability in relation to the total assets, that how company is using its assets efficiently and making profits from asset. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू सिंपल एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो ये पार्ट एकदम प्योर फाइनेंस का है, जिसमें कैपिटल बजटिंग कहा जाता है इसको। कैपिटल बजटिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू, अगर थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स है तो उनको पता रहेगा कि कैपिटल बजटिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स कि मैंने 50 लाख की मशीनरी लेने का सोचा है, और वो 50 लाख की मशीनरी मुझे चलने वाली है 10 साल। कितना चलने वाली है? 10 साल के बाद वो खराब हो जाएगी, ठीक है, कोई भी मशीन खराब होती है तो 10 साल की गारंटी है। तो अब ये जो 50 लाख है स्टूडेंट्स, 50 लाख में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरा साल का कितना इन्वेस्ट हो रहा है? 5 लाख जा रहा है, बराबर ना? मैंने 50 लाख की मशीनरी खरीदी है अगर, तो मेरा साल का कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है? 5 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 5 लाख रुपए का मेरा कॉस्टिंग है यहाँ पे हर साल, 10 साल तक 50 लाख हो जाएगा। तो मैं अगर 5 लाख रुपए साल का लगा रहा हूँ मशीनरी पे, तो मैं कम से कम कितना कमाना चाहिए? कम से कम मुझे 5 लाख तो कमाना चाहिए वो असेट को वैल्यू पे करने के लिए, या उससे ज्यादा कमा रहा हो तो इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड साइन फॉर द बिजनेस, that is known as the return on asset. That means how company is using the asset efficiently and making the profits from the assets. Is it clear? Clear है? So net profit upon total assets, the formula is net profit upon total assets, you will get the return on asset. मतलब 100 रुपए के ऊपर, 100 रुपए के असेट के ऊपर कंपनी का कितना पैसा कमा रही है कंपनी। The more the ROA, the more efficiently the assets are used by the company. तो जितना, yes, मैं एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ए assets is equal to rupees 1,500, net profit is equal to rupees 150, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ROA is equal to 150 upon 1500 into 100, तो कितना आ जाएगा? ROA is equal to 10%. Clear or not? Is it clear, students? Clear with this? Okay. अब कंपनी बी,
असेट्स कितने के हैं? 15,000 के, ठीक है। नेट प्रॉफिट रुपीज 1200, ROA is equal to 1200 divided by 15,000 into 100. ROA कितना आएगा स्टूडेंट्स? 8%। बोलो स्टूडेंट्स, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? कौन सा कंपनी का असेट, कौन सी कंपनी का असेट प्रेफरेबल है? मतलब कौन सी कंपनी बहुत एफिशिएंटली अपने एसेट्स को यूज कर रही है? विच कंपनी? यस प्लीज टेल मी। कंपनी ए, वेरी गुड गुणवंत, वेरी गुड, यस वेरी गुड, यस वैशाली, यस बहुत बढ़िया। सो कंपनी ए, नो डाउट कंपनी का बहुत छोटा असेट है, 1500 रुपए का असेट है, लेकिन उस पर 150 रुपए कमा रही है, मतलब वो 10% कमा रही है। और वहां पे 15,000 का असेट है, उस पर 1200। तो फिगर्स पे मत जाओ, परसेंटेज देखो। परसेंटेज इज अ मेन टूल फॉर यू ऑल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। सो उधर आरओए कंपनी बी में 8% यार। सो ये होता है आपका आरओए, मतलब यहाँ पे कंपनी ए अपने असेट्स को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है। क्लियर विद दिस? ओके, shall I erase? Shall I erase all this? Okay. Clear? Now, net profit margin into asset turnover is also is equal to return on asset. उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? रिटर्न ऑन asset बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कैश फ्लो मतलब नेट प्रॉफिट कम है, असेट का टर्नओवर ज्यादा है, तो रिटर्न ऑन असेट होगा। इवन नेट प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, असेट टर्नओवर है, तो भी रिटर्न ऑन असेट होगा। यहाँ नेट प्रॉफिट इंटू असेट टर्नओवर, ये कितना होना चाहिए? आरओए कितना होना चाहिए? एक स्टैंडर्ड आरओए कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? इट शुड बी एटलीस्ट 5% और मोर देन 5%। मतलब यहाँ पे 5% या 5% से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये रिटर्न ऑन असेट इस कंपनी का अच्छा है, कंपनी इज यूजिंग देयर असेट एफिशिएंटली। क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझा आपको? Okay. Okay, let's go ahead with the next ratio. So again, I'm repeating, do not rely on one ratio. आप एक रेशियो पे रिलाय नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी. Now, return on equity, it is one of the important ratios in which I am going to tell you about the what is ROE. ROE होता क्या है, ठीक है। ROE क्या होता है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है? आरओए दिया है आपको सामने ही स्क्रीन पे। देन क्या हमें सीखना चाहिए आरओए से, एंड आरओए को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें यूज कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो चल पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जैसे कि हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का सेकंड पार्ट चालू है हमारा, ग्रोथ हो चुका है, प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, तो इट इज अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आरओए का फॉर्मूला है ROE is equal to net profit upon average shareholders equity, जैसे कि दिया है, ऊपर भी दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ आपको। अब नेट प्रॉफिट जो है वो आपको कहाँ से मिलता है? नेट प्रॉफिट आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? नेट प्रॉफिट यू आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट। और शेयर होल्डर्स इक्विटी आपको कहाँ से मिलेगा स्टूडेंट्स? एक कौन से इसमें से मिलेगा? बैलेंस शीट में से। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? ना, ये हो गया आपका एक पार्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल देता हूं मैं। ना दी सेकेंड थिंग, इसका हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। विल टेक वन एग्जांपल हियर।
ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एक प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स लिमिटेड है, उसका नेट प्रॉफिट है, इट इज 113 करोड़, ठीक है। और एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी इज समवॉट 618 करोड़। अभी एवरेज सर, एवरेज कहां से आ गया? तो शेयर होल्डर्स इक्विटी और यहाँ पे 618 करोड़ कैसे है? मतलब 618 करोड़ तो एग्जांपल है, लेकिन एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे है? तो इक्विटी शेयर होल्डर का जो स्टार्टिंग है और एंडिंग है वो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो हमें मिल जाएगा एवरेज शेयर होल्डर्स इक्विटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर होल्डर स्टार्टिंग ओपनिंग ऐड करना है इक्विटी शेयर होल्डर का, और इक्विटी शेयर होल्डर का क्लोजिंग ऐड करना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा एवरेज, ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कमिंग टू द एग्जांपल हियर, अब आरओई को कैलकुलेट, yeah, sorry for the disturbance, really sorry. So we were on the example here, 113 crore upon 618 crore into 100, okay, into 100. So it will be somewhat ROE is equal to 18.3%, ठीक है। आप कैलकुलेटेड इट, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 18.3%। मतलब यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से आपका कितना परसेंटेज प्रॉफिट है। तो आपके इक्विटी शेयर होल्डर के हिसाब से आपका प्रॉफिट है 18.3%। मतलब आप यहाँ पे 618 करोड़ आपके शेयर होल्डर्स है, 618 करोड़ रुपीस के शेयर होल्डर्स है, और आपने कमाया है 113 करोड़। तो यहाँ पे दिस बिकम्स योर ROE एंड ROE इज 18.3% एज पर द एग्जांपल। इज इट क्लियर? यहां तक समझा स्टूडेंट्स आप लोग को? ठीक है। अब सवाल आता है, सर हाउ मच देयर शुड बी ए ROE? कितना ROE होना चाहिए? एट लीस्ट इट शुड बी 15%। स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए? इट शुड बी 15%। जैसे मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे भी बताया है आप लोगों को, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख ही रहा है।
15%, and I have already written here the 15%. Clear? Any doubt, students? Is it clear, students? Okay. एवरेज शेयर होल्डर का, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एवरेज शेयर होल्डर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी, इसमें आप ओपनिंग इक्विटी प्लस क्लोजिंग इक्विटी। अभी ओपनिंग और क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि 1 अप्रैल को आपके इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं और 31 मार्च को, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च को आपके क्लोजिंग इक्विटी कितने हैं। तो जैसे कि सपोज 838 करोड़ आपके स्टार्टिंग में इक्विटी है, प्लस आपके 398 करोड़ इक्विटी आपके क्लोजिंग में है, उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 618 करोड़। क्लियर? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब समझा? ओके ओके, दैट्स बेटर। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। ओके ओके, अब आप लोगों को मैं एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं, दैट इज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट in the company for long term, then we should check ROE of earlier years and it should be more than 15%. So यहाँ पे students ROE आपको check करना बहुत जरूरी है। That is if you want to invest and it should be more than 15%. ठीक है? Clear? It should be more than 15%. Clear? Any doubt? And again, I'll repeat, we should not only depend on ROE for investment purpose, because if the company has taken debt, then ROE can increase. अगर कंपनी ने डेप्ट लिया है, if company has taken debt, then ROE can increase. तो आपको यहाँ पे डेप्ट भी चेक करना पड़ेगा। अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल एग्जांपल, ठीक है? एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं यहाँ पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल एबी लिमिटेड, ठीक है? एबी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट है 15 करोड़, टोटल असेट्स है 100 करोड़, ठीक है? दैट इज एन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इज 100 करोड़, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया आपका एबी लिमिटेड का। अब एबी लिमिटेड का यहाँ पे मुझे अगर
ठीक है, जस्ट थोड़ा सा मैं, हाँ, एबी लिमिटेड का मुझे यहाँ पे अभी क्या फाइंड आउट करना है, आरओई फाइंड करना है। ठीक है, तो आरओई हम लोग फाइंड करते हैं। पहले यहाँ पे मैं बता देता हूँ सबसे पहले, दैट इज एबी लिमिटेड के बाद डीसी लिमिटेड। चलो, डीसी लिमिटेड का यहाँ पे है नेट प्रॉफिट इज 15 करोड़, सेम। ठीक है, एबी लिमिटेड की तरह टोटल असेट्स है 100 करोड़, एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी इज 30 करोड़ एंड डेप्ट इज 70 करोड़। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास कैपिटल उतना ही है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप लोग? आप समझ रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपनी का यहाँ पे भी 100 करोड़ है, यहाँ पे भी 100 करोड़ है, टोटल 100 करोड़ ही हो रहा है, लेकिन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी 30 करोड़ हो गया, डेप्ट 70 करोड़ हो गया। अब कंपनी क्या कर रही है, एबी लिमिटेड के केस में पूरा का पूरा इक्विटी शेयर लोगों से लेके रखा है और लोगों ने इक्विटी शेयर के फॉर्म में 100 करोड़ रुपया दिया है कंपनी को। कंपनी ने लोगों को इक्विटी शेयर दिया है और कंपनी ने लोगों से 100 करोड़ रुपया लिया है, और उस 100 करोड़ पे कंपनी ने कितना कमाया है? 15 करोड़ कमाया है। सीधा हिसाब है, 15% कमाया है। ठीक है, कैलकुलेट करके बताता हूं मैं आपको। बट डीसी लिमिटेड के केस में क्या हो रहा है, नेट प्रॉफिट 15 करोड़ कमाया है। ठीक है, तो टोटल असेट्स कितने हो गए? 100 करोड़ हो गए, 100 करोड़ ही है यहाँ पे, क्योंकि एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी से 30 करोड़ रुपए मिला है। मतलब इक्विटी शेयर लोगों को शेयर दिए हैं और लोगों से 30 करोड़ लिया है शेयर के फॉर्म में, और कंपनी ने कर्जा लिया है, डेप्ट लिया है 70 करोड़ का। तो टोटल आपके पास 100 करोड़ ही है। अब 100 करोड़ से यहाँ पे क्या किया है कंपनी ने? 15 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पे डेप्ट बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका शेयर होल्डर्स का, आपका जो आरओई है वो भी बढ़ जाएगा। देखो कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एग्जांपल, आरओई का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी। ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट केस में, एबी लिमिटेड केस में 15 करोड़ डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा आरओई? 15%। इस कंपनी को मैं बोलूंगा, मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये कंपनी इट इज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फाइनेंशियली क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, कंपनी क्या है? फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। देन बात करते हैं हम लोग दूसरे केस की। आरओई इज इक्वल टू 15 करोड़ का तो नेट प्रॉफिट है। अब एवरेज शेयर होल्डर इक्विटी कितना है? 30%। आरओई कितना है? 50%। फाइनेंशियली वीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट इज फाइनेंशियली वीक। इज इट क्लियर? बोलो, अब समझा आपको? ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल आई हैव गिवन। अब आरओई कितने साल का चेक करना चाहिए? रिटर्न ऑन इक्विटी कितने साल का? एटलीस्ट 10 ईयर का, 5 to 10 ईयर का। ओके, क्लियर? अगर आपको आरओई चेक करना है तो आप क्या रेफर करेंगे? screener.in, इस पे से आपको आरओई मिल जाएगा। क्लियर? आरओई देखना है, अभी देखना है क्या आरओई?
ROE अभी देखोगे स्टूडेंट्स? अभी देखना है, चलो अभी बता दो। इतना समझा? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्पीड बराबर है मेरा, स्लो नहीं हुआ ना, ज्यादा स्लो नहीं हुआ ना, क्योंकि मैं टाइप भी कर रहा हूँ ना, आई एम टाइपिंग एंड ऑल्सो, तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। ओके, चलो ROE देख लो तो। सेंट्रल डिपॉजिटरी लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड का देखते हैं। ROE कितना है? 25% है। ठीक है, कितना है? 25%, बराबर। अब इसका ROE देखते हैं, ITC कंपनी का कितना है? 21%। आप देख सकते हो एवरेज में, एवरेज करके, अच्छा ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो CDSL का ROE। ये डेटा को आप एक्सेल शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ROE कितना है? 25%। ITC का कितना है? 21%। अब मैंने गूगल पे खाली सर्च किया, लास्ट 5 ईयर ROE 10 साल का कितना है? 15%। तो इट्स गुड, इट्स अ गुड साइन। 5 साल का 18% है, वेरी गुड साइन। 3 साल का 19% है, और लास्ट ईयर का ROE 26% है। कंपनी को मैं जरा चेंज करता हूँ और ITC कर देता हूँ। ITC बहुत बढ़िया ROE है इनका भी। इसके साथ आपको क्या चेक करना है? डेप्ट कितना है। डेप्ट देखो कितना है। मार्च 19 में 11 करोड़ था, मार्च 15 में 53 था, मतलब इन्होंने डेप्ट कम किया। डेप्ट कम किया तो ये भी अच्छी साइन है, इट्स अ गुड साइन कि कंपनी ने डेप्ट कम किया है, और उनका ROE भी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हुआ है, करेक्ट ना? कम हुआ है बट फिर भी अच्छा है। डेप्ट कम कर दिया तो ROE, अल्टीमेटली ROE कम होने वाला है। डेप्ट बढ़ गया तो ROE भी बढ़ जाएगा। क्लियर? एनी डाउट? काइंडली रिप्लाई। चलो आगे का बताता हूँ मैं आपको भी। अब बात करेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? ROA हम लोग ने देखा, ROE देखा, नेट प्रॉफिट मार्जिन देखा, फ्री कैश फ्लो देखा स्टूडेंट्स, और अब हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
ROC. Now, ROC is also one of the profitability ratio and it is also known as the financial ratio. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ROE को हम लोग, it is one of the, just a minute, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे तो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. So one of the financial ratios, then it's a profitability ratio. Then इसमें हमें क्या पता चलता है, इस रेशियो से हमें क्या पता चलता है कि हाउ मच अ कंपनी इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑन इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड. अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना पैसा कमाती है. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या होता है सर? टोटल असेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटी. असेट की टोटल या फिर लाइबिलिटी की टोटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड. क्लियर? इसका फॉर्मूला क्या है? ROC. ROC earnings before interest and taxes upon capital employed. इसको हम लोग, ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब क्या होता है कि आपने यहाँ पे क्या किया है? आपने अर्निंग किया है, वो भी टैक्स और प्रॉफिट के अमाउंट के, सॉरी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स पेमेंट करने के पहले जो भी अर्निंग किया, दैट इज नोन एज ना EBIT. क्लियर? EBIT जो है आपको कहां से मिलेगा? यू विल गेट इट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, EBIT. और C आपको कहां से मिलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड. यू विल गेट इट फ्रॉम बैलेंस शीट, क्योंकि वो टोटल असेट का होता है और लाइबिलिटी का होता है. ठीक है, क्लियर? फिर से मैं इधर भी लिख के दे देता हूं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे मिलेगा. तो टोटल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज और कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से भी फाइंड आउट किया जाता है, दैट इज टोटल फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल. ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का. यहां तक क्लियर है? अब ROC से क्या होता है? इट डिफाइंस द बिजनेस स्ट्रेंथ. क्या डिफाइन करता है ये? कि बिजनेस कितना मजबूत है. स्टैंडर्ड रेशियो कितना होना चाहिए? स्टैंडर्ड ROC कितना होना चाहिए? इट शुड बी 15%. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फेवरेबल. 15% से ज्यादा रहना चाहिए, 15% होना चाहिए. दिस रेशियो इज यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. क्लियर? Do not invest with emotions in the market. इमोशन पे मार्केट नहीं चलता है, इमोशंस पे इन्वेस्ट मत करना. इन्वेस्ट विथ एनालिसिस. ओके, क्लियर? काइंडली रिप्लाई. Is it clear? Okay. I'll clear the screen now.
ओके, सो मैंने जो बताया है ROC के बारे में वही है, ठीक है। नॉर्मली कितना होना चाहिए, 15%। और कितने साल के लिए चेक करना है आपको, मिनिमम कोई भी रेशियो 5 साल का चेक करने का। जितने ज्यादा साल का चेक करोगे उतना आपको स्टेबिलिटी पता चलती है कंपनी। ओके, इफ डेप्ट इज प्रेजेंट चेक ROC, इफ जीरो डेप्ट चेक ROE। देखो ये भी आपको एक एनालिसिस का पार्ट है। अगर डेप्ट है कंपनी के अंदर तो ROC चेक करोगे। अगर जीरो डेप्ट कंपनी है मतलब उन्होंने उधार लोन लिया ही नहीं है किसी से, तो ROE चेक करोगे। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? ओके, ask your doubt. So now only by explaining this, इतना explain करने के लिए इतना टाइम जा रहा है, ठीक है। So that's all for today. आज के लिए इतना ही बस करेंगे हम लोग। So बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आज हम लोग ने देखा, दैट इज 5 स्टेप एनालिसिस प्रॉफिटेबिलिटी। You can ask your doubt if you have any doubt. Please ask. और रेशियोज देखने स्टूडेंट्स आज, या आज के लिए बस करें? फाइनेंशियल हेल्थ भी देखना है, तो उसमें आ जाता है डेब्ट टू इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, ठीक है। या फिर हम लोग कल डिस्कस करें? विल डिस्कस इट टुमारो ना, ठीक है। ROC एंड ROE का डिफरेंस ये है कि ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी फंड के ऊपर वो रिटर्न्स पता करता है। मतलब ROE के फॉर्मूला अप्लाई करने से आपने इक्विटी शेयर्स के ऊपर कितना आपका रिटर्न्स है, मतलब आपने कितना पैसा कमाया आपके इक्विटी शेयर्स के हिसाब से। आपके इक्विटी शेयर्स 10 लाख है, आपने 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, तो आपने 10% आपका ROE है। अब ROCE में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, ROCE के अंदर इक्विटी भी इन्वॉल्व है और डेप्ट भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपका इक्विटी डेप्ट मिला के हो रहा है 25 लाख रुपए, और आपने 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया है, तो 5% आपका क्या है यहाँ पे ROCE है। तो जब भी अगर कंपनी के पास डेप्ट और इक्विटी दोनों फॉर्म में उन्होंने फाइनेंसिंग लिया है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग किया है, तो यू आर गोइंग टू रेफर ROCE का रेशियो। एंड जब भी कंपनी के पास डेप्ट फ्री कंपनी होती है, मतलब जो लोन फ्री कंपनी होती है, लोन लेती नहीं है, सिर्फ इक्विटी पे ही उनका सब चलता है बिजनेस, इक्विटी के पैसे पे ही चलता है, तब आप ROE का रेशियो यूज करोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दी ROE एंड ROCE। ओके फराना? यस, गुड क्वेश्चन। एनीवन एल्स? और किसी को कुछ पूछना है प्लीज आस्क। Okay, so that's all students, we will wind up, and
आपका लेक्चर कल 7 बजे होगा, ठीक है, एंड वी विल कंप्लीट डेली, ऐसा करके हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ये संडे तक हम लोग वाइंड अप करेंगे, ठीक है, बिकॉज आपके अभी आई थिंक वी हैव 31, 32, 33, ठीक है, और उसके बाद हमारे जो आगे के जो लेक्चर्स है, मतलब आगे का जो पार्ट है, दैट वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे। कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू चेक, ठीक है। Okay, students, so shall we wind up? Okay, that's all. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.